Hello everyone, and this is a video for class 10. Okay, we will start with our next poem, that is Fire and Ice. Before starting this this poem, I want to say you that Robert Frost is a poet who always used to think things or feelings in a different way. ओके जैसे हम लोग कोई भी इमोशंस को इमोशन के हिसाब से ही देखते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज नॉट लाइक दैट. ही यूज टू थिंक दैट दीज इमोशंस आर सम वॉट और द अदर द क्रिएशन दैट मेक्स पीपल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. किसी का गुस्सा हम लोग सोचते क्या है, जो गुस्सा सबका एक जैसा होता है ना, चिढ़ जाना, देन हंसना, लेकिन उसमें भी कहीं पर डिफरेंस है. कोई गुस्से में चुप रहता है, कोई गुस्से में चिल्लाता है, कोई गुस्से में थिंग्स फेंकता है. तो वो क्या करता है, इस सब इमोशंस को पर्सोनिफाई करता है. पर्सोनिफाई का मतलब हम लोग इमोशंस को लिविंग थिंग्स तो समझते, लेकिन उसे इंसान नहीं समझते. But this person, this poet used to think everything as if it has life. It's a different human. Okay, now in this poem, as we know that it's talking about fire and ice. Normally what do we say, that fire is what हम लोग जैसे जिसे बोलते हैं आग बोलते हैं, और ice को जिसे हम लोग बोलते हैं, and normally that is ice, बर्फ. तो he is not talking about this. He is talking about hatred and revenge. Okay, वो बात कर रहा है दो चीज़ का, एक है हेट्रेड और एक है रिवेंज. जहाँ पर हेट्रेड को वो फायर की तरह यूज़ किया है, रिवेंज को किया है आइस की तरह यूज़. We know na that if we have boyfriend and girlfriend, then they used to have a anger between themselves, that is known as a fire, a spark. And when you or the other one betrays any one of you, that means if the boy betrays the girl or girl betrays the boy, she had or he had a cold heart against that person. That means it's full of ice, it's full of revenge, it's full of coldness, it's full of it's not that whenever you will see him you will fall into love, or you will think about your loving sights or moments. You will think about how you can also give him that pain, that suffering that you have once gone through for him. Okay, यही चीज़ वो बोल रहे हैं यहाँ पर. What he is saying, that some says the world will end in fire, some says in ice. He is saying that कुछ पीपल्स हैं जो लोग बोलते हैं कि फायर से ही अर्थ का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, कुछ कहते हैं कि आइस से. मतलब कुछ पर्सन्स कहते हैं, कुछ पीपल बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस एंगर हम लोग का एक दूसरे के जितना भी आदमी है, हम लोग एक दूसरे के प्रति क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग को गुस्सा इतना बढ़ जाता है, हम लोग किसी को ख़त्म करना चाहते हैं. दैट मीन्स वॉट, इफ़ यू आर किलिंग समवन, दैट मीन्स वॉट, you are killing someone or the other, the life in that earth, the life is deteriorating. Similarly, it's saying that there may be anger which may kill or which may make the earth barren, or on the other hand it's ice मतलब हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं इसे, revengeful attitude, coldness, heartness, which will also bring earth into bring earth into barrenness का मतलब है जहाँ पर कोई भी आदमी या फिर कोई टाइप का लाइफ नहीं रहना. ठीक है. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. मैंने जितना अपने लाइफ में देखा है, whatever I have gone through, whatever time I have went by, I favor fire because I know that anger mostly kills people. अब भीतर ही भीतर उस किसी के लिए कुछ नहीं होकर भी कुछ एंगर इतना पैदा कर लोगे ना आप कि भीतर ही भीतर आप जल जाओगे, आप मरने लगोगी. The other one will not have any feelings about what you are having in your mind, but somewhere or the other you are dying for that.
you are dying for that fire. I hold with those who favor fire. That's why he's saying that अगर मैं अपने बात करूं तो I am also within that person who makes or who inbuilds fire within himself instead of ice. मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, रिवेंज लेना मेरा दिमाग में नहीं आता जितना हमको गुस्सा दिखाना आता है अपने आप में। वो उस बात को लेके बहुत गुस्सा करना, उस बात को लेके बहुत सोचना, अपने आप को भीतर से मारना, ये ज़्यादा मेरा प्रेफरेंस है। ज़्यादा पीपल यही प्रेफर करते हैं, जितना मैंने देखा है, जितना व्हाट आई हैव सीन द टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। डिज़ायर मतलब क्या है? कोई ख्वाहिश, ठीक है, किसी का कुछ ख्वाहिश हो चुका। हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि उसे मार ही डालूं। दैट मीन्स वॉट ही इज हैविंग अ डिज़ायर टू किल हिम। That means what? An anger is getting within, a fire is always sparkling within that heart of that person. Next. But if it have to perish twice, what do we mean by perish? मतलब फिर से मरना हो तो एक बार तो मर चुके आइस से। अगर हम लोग खुद की बात करें तो हम लोग एक बार जलते हैं फायर के लिए, कभी एक बार जलते हैं आइस के लिए भी। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ द रिवेंजफुल एटीट्यूड, ठीक है। एक बार तो हम लोग बिकॉज ऑफ द एंगर हम लोग अपने आप को मार ही रहे हैं, अगर दूसरी बार भी मारना चाहे तो हम लोग आइस से मार सकते हैं। कैसे? आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस का मतलब इट्स सफिशिएंट, मतलब दिस आइस which is a type of hatred, a revengeful attitude, it will also kill us. It will also make us dead. And this person, the poet thinks that this ice and fire enough. It's enough for a person to die, make a person dead by himself from inside, which will not leave a pinch of desire to live within that person. ये फायर एंड आइस, ये गुस्सा, ये रिवेंज, ये हेट्रेड इतना हम लोग को तोड़ देगा, इतना हम लोग को मार डालेगा भीतर से ना, कि आपके दिल में एक बूंद भी नहीं रहेगा, बचने का कोई आसरा भी नहीं बचेगा। I know that people nowadays, because of this pandemic I'm just making a wrong word, a pandemic situation, people are getting accustomed with this. But somehow or the other, we know that many people are there who are, because of this हेट्रेड बाय द अदर्स। हम लोग देखते हैं ना, किसी को अगर कोरोना हो गया तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पीछे हट जाते हैं, हम लोग उनको हेल्प नहीं करते। नॉर्मली ये आजकल का नीति हम लोग बोल सकते हैं, इट्स जस्ट लाइक दैट। बट कहीं ना कहीं ये इट्स किलिंग अदर पीपल्स। जिसको हेल्प चाहिए वो भी इसमें डेड हो रहा है ना। आपके भीतर इंसानियत मर जा रहा है। आपके भीतर इंसान मरने का मतलब ये, आपके भीतर एंगर, रिवेंज, हेट्रेड एंड दिस ऑल विल बी कमिंग अप। That means what? It's somewhere or the other, we are facing the same fate. We are tasting the same fate now. Okay. Now, I think जितना समझाना चाहिए उतना मैं समझा चुकी हूँ by this video. So I would like that you student of class 10, I know that only 3 of the people has given me the copy for checking and the rest have got 0. I don't know why they are so much casual about their studies. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग को 0 मिलना आप लोग को अच्छा लगता है, देन वेल एंड गुड, फाइन। आई वुड अप्रिशिएट दैट। बट जिन लोग को स्टडी करना है, प्लीज़ आई वुड सजेस्ट दैट खुद से बना के लिखो, आंसर सेंड करो, या फिर से कॉपी चेकिंग होगा ही। एट दैट टाइम प्लीज़ गिव इट। ओके, थैंक यू।